Hello students, I welcome you all to this lecture series on fuels and combustion, which covers the unit 4 in engineering chemistry in AKTU syllabus. In this lecture series, we will be covering various topics like definition of fuel, its classification, we will discuss about the characteristics of good fuel, and at the same time we will learn how to calculate the air that is required for combustion by volume as well as by weight. So, let us start with our very first lecture, that is definition of fuels. Now, fuels, as you see here, any compound which on burning in the presence of air or oxygen produces a large amount of heat that can be used economically for industrial and domestic purpose is known as fuel. The process of burning in the presence of air and oxygen, this is known as combustion. So, we can easily say that any substance or any compound that on combustion produces large amount of heat which can be used both for domestic as well as industrial purpose is known as fuel. If we want to write down this in the form of equation, we can write it as fuel plus oxidant gives combustion products plus energy. Combustion products are generally the byproducts that are produced like carbon dioxide, or we can say water in the form of steams, ash products. These are all the byproducts. Further, if we talk about the classification of fuels, fuels can be classified on two bases, that is the physical state of fuels and second one is on the basis of occurrence. Firstly, we will classify fuels on the basis of their physical state. Physical state के basis पे हम fuels को classify कर सकते हैं into solid fuels, liquid fuels and gaseous fuels. सॉलिड फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में आकर करते हैं. एग्जाम्पल्स आर वुड एंड कोल. लिक्विड फ्यूल्स दे आकर इन लिक्विड स्टेट एंड वी हैव एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोल, natural gas, natural gasoline, and last is gaseous fuels. Gaseous fuels are those fuels which occur in gaseous forms and the examples are LPG, or we have another examples like natural gas. If we want to classify fuels on the basis of their occurrence, then we have two types of fuels. First one is the primary fuel or natural fuel. As the name suggests, प्राइमरी या नेचुरल फ्यूल्स वो हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और उनको एज इट इज़ हम यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स आर वुड एंड कोल. नेक्स्ट इज दी सेकेंडरी और प्रिपेयर्ड फ्यूल्स. सेकेंडरी और प्रिपेयर्ड फ्यूल्स वो फ्यूल्स हैं जो कि नेचुरल फ्यूल्स से बनाए जाते हैं. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दी नेचुरल फ्यूल्स और प्राइमरी फ्यूल्स एंड द एग्जाम्पल्स आर चारकोल, पेट्रोलियम, coke, etc. So, this was all about the classification. Now, let us move on to the comparison between solid, liquid and gaseous fuels. For example, if someone asks you a question कि solid, liquid और gaseous fuel में सबसे अच्छा fuel कौन सा होता है, तो we can just lay down a table जिसमें हम एक एक करके सभी properties के लिए अपने तीनों तरीके के fuels को compare कर सकते हैं. So, let's start with the very first property, that is the calorific value. कैलोरीफिक वैल्यू को डिस्कस करने से पहले लेट्स नो व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू. ये डायरेक्ट मेजर है फ्यूल का जो कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट या जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्यूल प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू. डिटेल में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी कैन सी द कैलोरीफिक वैल्यू इज़ हाइएस्ट इन द केस ऑफ गैसियस फ्यूल्स. इट इज़ लोवेस्ट इन द केस ऑफ सॉलिड फ्यूल्स. और अगर लिक्विड फ्यूल्स की बात करते हैं तो इट्स कैलोरीफिक वैल्यू लाइज बिटवीन दीज टू. The second property is cost factor. Cost factor में हमें पता है कि अच्छा फ्यूल वही होगा जो कि आम आदमी अप्रोच कर सके उसको. And here we can see gaseous fuels and liquid fuels are costly fuels, whereas solid fuels are quite cheap in their rates. That is, they are not costly. Next factor is the ash content. ऐश का मतलब होता है राख. जो भी चीज़ फ्यूल के पूरे जलने के बाद में बचती है, दैट इज़ नोन एज ऐश कंटेंट. एंड लेट मी टेल यू, ऐश कंटेंट का कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होता, ज़ीरो कैलोरीफिक वैल्यू है. तो हम कह सकते हैं दिस इज़ टोटल वेस्ट पार्ट ऑफ द फ्यूल. अब ऐश कंटेंट देखिए, सबसे
कम है, नेग्लिजिबल, दैट इज नेग्लिजिबल इन फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स, और नील यानी जीरो इज प्रोड्यूस्ड इन gaseous fuels, and highest ash content is with the solid fuels. The next factor that we want to compare is rate of combustion. Rate of combustion is किस गति से fuel जलता है, what is the rate of its combustion. So we can see that once the solid fuel starts combusting or once it starts burning, many a times it goes out of control, that is the combustion is not controllable, whereas it can be controlled in the case of liquid fuels as well as in the case of gaseous fuels. Next property is air used. We all know that for combustion fuels require air, they require oxygen. So the amount of air that is utilized is just sufficient in case of gaseous fuel. बस जितनी combustion के लिए हवा चाहिए उतनी ही ज़रूरत पड़ती है, उतनी ही gaseous fuels consume करते हैं. It is highest, that is it is in large excess in case of solid fuels and slightly large in liquid fuels. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे कम जो air requirement है वो gaseous fuels की है. Moving on to next property, this is space for storage. सबसे ज़्यादा space of storage चाहिए gaseous fuels को. Why? Because gases को हम ज़रूरत से ज़्यादा कंडेंस नहीं कर सकते हैं, उनको हम कंडेंस नहीं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, राइट. सो सबसे ज़्यादा जो स्पेस चाहिए दैट इज़ फॉर द गैशियस फ्यूल्स एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस इज रिक्वायर्ड बाय द सॉलिड फ्यूल्स. लिक्विड फ्यूल्स आप देखेंगे फिर से इन दोनों के बीच में लाई करते हैं. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी दैट वी वांट टू कंपेयर इज थर्मल एफिशिएंसी. थर्मल एफिशिएंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, हीट. तो थर्मल एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है गैसेस के केस में, सबसे कम है सॉलिड के केस में, एंड लिक्विड फ्यूल्स अगेन इन बिटवीन दीज टू. तो अगर हम पूरी टेबल को एक बार देखें तो वी कैन ईजिली कंक्लूड दैट गैशियस फ्यूल्स आर दी बेस्ट फ्यूल्स. नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल. एक अच्छे फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए. वीव डिस्कस्ड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन, और हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि एक अच्छे फ्यूल को उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ द सूटेबिलिटी. फ्यूल सेलेक्टेड शुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर द प्रोसेस. क्या मतलब है इसका. यहाँ कहा जा रहा है, जैसे आप जानते हैं कि इंटरनल कंबशन इंजन्स में कुछ फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ फ्यूल्स हम घर पे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो अब हम इन दोनों को आपस में चेंज नहीं कर सकते. डोमेस्टिक फ्यूल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन इंटरनल कंबशन इंजन्स, एंड इंटरनल कंबशन इंजन्स में जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं दे कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस. तो सूटेबिलिटी के हिसाब से हमें फ्यूल को चूज़ करना है. नेक्स्ट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू. अभी जैसे कुछ देर पहले आई टोल्ड यू कैलोरीफिक वैल्यू इज़ बेसिकली डायरेक्ट मेजर ऑफ हीट और एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूल. सो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा फ्यूल वो होगा जो कि अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू रखेगा. एंड वन मोर थिंग, कैलोरीफिक वैल्यू इज़ द डायरेक्ट मेजर ऑफ कार्बन कंटेंट. यानी कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही अच्छी होगी, फ्यूल उतना ही अच्छा होगा. सो हियर यू कैन सी फ्यूल शुड हैव हाई कार्बन कंटेंट दैट इज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. इफ़ यू टॉक अबाउट इग्निशन टेम्परेचर, तो पहले तो देखिए इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है. इग्निशन टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर at which fuel starts igniting, यानी वो पॉइंट जहाँ से फ्यूल का कंबस्शन शुरू होता है, जहाँ से वो फायर को कैच करता है, उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर. अब समझना आसान है कि इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए. इट शुड बी मॉडरेट, नीदर टू हाई नॉर टू लो, बिकॉज इफ़ द इग्निशन टेम्परेचर इज़ टू लो, बहुत कम है, तो इवन एट रूम टेम्परेचर द फ्यूल वुड ईजिली कैच फायर, फायर हैजार्ड्स का डर रहेगा. एंड दूसरा केस है कि इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी हाई, देन व्हाट विल हैपन इज इग्निशन में प्रॉब्लम आएगी, कंबशन ही मुश्किल हो जाएगा, राइट. सो अ गुड फ्यूल शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट. मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है कि हमारे फ्यूल के अंदर वाटर कंटेंट या हम कह सकते हैं नमी कितनी है. अ गुड फ्यूल शुड हैव वेरी लेस मॉइस्चर कंटेंट. द रीज़न बीइंग because the moisture reduces the calorific value of the fuel and it also quenches the fire in the furnace. furnace के अंदर जो fire है उसको वो बुझा देता है. quenches मतलब बुझा देता है. so the moisture content of a good fuel should be very less. and next factor is non combustible matter or ash content.
अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया है ऐश कंटेंट नॉन कंबस्टिबल मैटर है, जलने में जो जलने के बाद बचता है, वट एवर वेस्ट इज़ लेफ्ट दैट इज़ ऐश, दैट इज़ नोन एज ऐश। तो ऐश कंटेंट का कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, इट्स जस्ट अ वेस्ट दैट ऑक्यूपाइज द प्लेस इन दी फ्यूल। तो यहाँ पे हम सीधे से समझ सकते हैं कि ऐश कंटेंट जो है फ्यूल में, अच्छे फ्यूल में ऐश कंटेंट बहुत कम होना चाहिए। एज यू कैन सी ऐश कंटेंट शुड बी लो as it reduces the calorific value of the fuel, it lowers the rate of combustion, results in high heat losses and also results in the formation of ash lumps. Moving on to next property, this is rate of combustion. Rate of combustion जो है वो भी moderate होना चाहिए। Again the reason being, rate of combustion अगर बहुत ज़्यादा है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोलेबल नहीं होगा, फायर हैजार्ड्स का डर रहेगा। एंड इफ़ द रेट ऑफ कंबशन इज़ टू लो तो वहाँ पे हमें टाइम और फ्यूल का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्टर इज वॉलेटाइल मैटर। हाई वॉलेटाइल कंटेंट गिव्स लॉन्ग फ्लेम्स, हाई स्मोक एंड रिलेटिवली लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वॉलेटाइल मैटर को पहले समझ लेते हैं क्या होता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है एनीथिंग दैट इवेपोरेट्स क्विकली। कोई भी चीज़ अगर एयर की कॉन्टैक्ट में आके एकदम से इवेपोरेट होती है तो दैट इज़ नोन एज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मैटर तुरंत जब भी हम कंबशन करेंगे इट विल इवेपोरेट, इसका मतलब कोई कैलोरीफिक वैल्यू ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो द वॉलेटाइल मैटर शुड बी लो। कॉस्ट फैक्टर अगर हम देखते हैं तो अगेन द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल शुड बी रीजनेबल, हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। A good fuel should not produce any harmful byproducts or pollution. This is obviously a point to be noted. And the last factor is transportation and storage of a good fuel should be easy. It should be easy to store and it should be easy to transport as well. Next, we'll learn how to calculate the air that is required for combustion. यहाँ पे जो हम कैलकुलेशंस करेंगे, जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि एयर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एयर बाय वेट एंड एयर बाय वॉल्यूम। हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन टू न्यूमेरिकल्स और बिफोर लर्निंग हाउ टू डू द न्यूमेरिकल्स, आई वुड लाइक टू डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि आपको कैलकुलेशंस में हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। For efficient combustion, it is essential that fuel must be brought into intimate contact with sufficient quantity of air or oxygen. तो सीधी सी बात है, फ्यूल को कंबशन करने के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन या एयर की ज़रूरत है, तो उसको इंटीमेट कॉन्टैक्ट में आना होगा उसके। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंबस्टिबल सब्सटेंस यूजुअली प्रेजेंट इन फ्यूल्स विच एंटर इनटू कंबशन आर मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो जो एलिमेंट्स they undergo combustion, these are basically carbon, hydrogen, sulfur and oxygen जो है वो itself it does not undergoes combustion, rather it helps in combustion. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर हैं जो कि फ्यूल में कंबस्ट होते हैं। यहीं पे हम ये देखेंगे कि जो इनकम्बस्टिबल मटेरियल है जिसका कंबशन नहीं होता, वो कौन कौन से हैं। दीज आर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऐश। यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐश की कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती। इनको हम जब हम कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे कैलकुलेशंस के लिए। And the next point is at STP 1 mole of all gases occupy a volume of 22.4 liters. STP का मतलब क्या है, standard temperature and pressure. Pressure is 1 atmosphere and the temperature is 273 kelvins. So this is the standard temperature pressure. इस STP पे सभी gases का 1 mole अगर हम consider करते हैं तो it will occupy 22.4 liters. इसको एक तरीके से और समझा जा सकता है, if I say I am having 1 mole of oxygen, that will be equal to its molecular weight, that is 32 grams of oxygen. 1 mole of hydrogen is 2 grams of oxygen, right? So I can say 1 mole of oxygen occupies 22.4 liters, 1 mole of hydrogen occupies 22.4 liters, or I can say 32 grams of oxygen occupies 22.4 liters, 2 grams of hydrogen occupy 22.4 liters. I hope the things are clear. The next point to be considered is air contains 21% of oxygen by volume and 23% of oxygen by weight.
तो हवा में जो कंपोजिशन है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, दैट इज़ 21% बाय वॉल्यूम एंड 23% बाय वेट. Hence 1 meter cube of oxygen will be supplied by net oxygen into 100/21, राइट. तो ये जो नेट ऑक्सीजन है यहाँ पे, क्योंकि हमने 1 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन लिया है, आई कैन सब्सटीट्यूट नेट ऑक्सीजन बाय 1 into 100/21, दिस गिव्स मी 4.76 मीटर क्यूब ऑफ एयर. नेक्स्ट, इसी तरीके से जैसे यहाँ हमने वॉल्यूम के लिए कंसिडर किया है, सिमिलर केस इज फॉर द वेट ऑफ ऑक्सीजन. फॉर द वेट ऑफ ऑक्सीजन अगेन आई एम हैविंग द सेम फार्मूला, नेट ऑक्सीजन इंटू 100/23, 23% बाय वेट होता है ऑक्सीजन. सो दिस इज नेट ऑक्सीजन इंटू 100/23. नेट ऑक्सीजन के लिए हमने क्या रखा है, 1 kg. सो सब्सटीट्यूटिंग 1 आई गेट 4.35 kg ऑफ एयर. I need to remember molecular weight of air is 28.94 grams per mole. अभी देखिए हमने ऊपर पढ़ा था, again I can say 1 mole of air occupies 22.4 liters of volume, or I can say this much gram of air, 28.94 grams of air occupies 22.4 liters of volume. How can I calculate the minimum oxygen required? Or I can say the net oxygen required. Minimum oxygen required या net oxygen is one or the same thing. So it can be calculated by subtracting the oxygen present in fuel from the theoretical oxygen required. Theoretical oxygen required क्या है, इसको कैसे calculate करते हैं, अभी हम numerical में देखेंगे. Theoretical oxygen में से अगर हम oxygen present in fuel को minus कर देते हैं, I get the net oxygen. And the last point to be remembered is if fuel does not contain oxygen, फ्यूल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, थियोरेटिकल ऑक्सीजन को ही हम नेट ऑक्सीजन कंसिडर करते हैं. इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फ्यूल इज 0, देन थियोरेटिकल ऑक्सीजन वुड बी कंसिडर्ड एज नेट ऑक्सीजन. सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स वी नीड टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग आवर न्यूमेरिकल्स. अब हम न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं. जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको वो पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल. दिस इज अ सैम्पल ऑफ कोल वॉज फाउंड टू हैव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन. यहाँ आपको एलिमेंट्स प्रोवाइडेड हैं, इनका परसेंटेज प्रोवाइडेड है कंपोजिशन, एंड यू नीड टू कैलकुलेट मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ कोल सैम्पल. 1 kg कोल सैम्पल हमारे पास है, उसका एलिमेंटल एनालिसिस आपको दिया गया है, एंड यू नीड टू कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड. न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी. जब भी हम ये न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नेट ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे. नेट ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो कि ये है. देखिए, नेट ऑक्सीजन के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है 32/12 कार्बन प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस सल्फर माइनस ऑक्सीजन इन ग्राम्स. दिस फार्मूला कैन बी डायरेक्टली यूज टू कैलकुलेट दी ऑक्सीजन. ये फार्मूला कहाँ से आया, आप देखिए, जब कार्बन है, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ में मिलता है, यानी कार्बन अंडरगोज कंबस्शन, देन इट प्रोड्यूसेस CO2. यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन वुड रिक्वायर 32/12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज हाउ दिस इज 32/12 कार्बन. हाइड्रोजन के लिए भी आप ये देख सकते हैं, कंबस्शन इक्वेशन लिख के H2 combines with half molecule of oxygen to gives water. यहाँ पे देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन combines with 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करेगा, 16/2, दैट इज 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे हमने लिया है 8 हाइड्रोजन. सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट 32 है. सल्फर के लिए अगर आप इक्वेशन लिखेंगे, सल्फर प्लस O2 गिव्स SO2. दिस इज 32, दिस इज अगेन 32 ग्राम्स. तो 32 ग्राम्स कंबाइंस विथ 32 ग्राम्स, इसलिए यहाँ पे हमने सल्फर लिया है. और माइनस ऑक्सीजन इसलिए किया है क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन कंबस्शन, इट डज नॉट कंबस्ट इटसेल्फ. तो फ्यूल में जो भी ऑक्सीजन है उसको हम माइनस करते हैं. सबसे पहले हम नेट ऑक्सीजन निकालते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, एंड द सेकेंड स्टेप इज वी कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर. तो ये मिनिमम ऑक्सीजन हमने निकाला है, जिसको कि हम नेट ऑक्सीजन भी कहते हैं. फॉर्मूला हमारा एयर के लिए क्या होगा, नेट ऑक्सीजन इंटू 100/23.
डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कीजिए ऑक्सीजन, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमें उसी तरीके से प्रोसीड करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि हमें जो फ्यूल है दैट इज़ प्रोवाइडेड एज 1 kg ऑफ द कोल सैंपल। फॉर्मूले भी में हमने देखा कि हमें ग्राम्स में चीज़ें चाहिए, जबकि इस क्वेश्चन में हमें चीज़ें जो हैं आपको परसेंटेज में गिवन है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे परसेंटेज से इनको ग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा। किस तरीके से हम कर सकते हैं, टोटल फ्यूल देखिए हमारा ये 1 kg फ्यूल है, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम्स ऑफ फ्यूल है, ठीक है। तो 75% ऑफ 1000 ग्राम्स वुड बी 75 बाई 100 इंटू 1000, 750 ग्राम्स आ गया। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए 5.2% है, 5.2% ऑफ 1000 ग्राम्स, 5.2 अपॉन 100 इंटू 1000, 52 ग्राम्स। एंड सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट फॉर ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्वांटिटी हमें निकालनी है। अभी हमने डिस्कस किया था, आपके पास कार्बन है, आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है फ्यूल में, सल्फर आपको प्रोवाइडेड नहीं है। तो इस फॉर्मूले में आपको जो भी एलिमेंट्स प्रोवाइडेड हैं उनकी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो प्रोवाइडेड नहीं है उसको ऑल टुगेदर छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम सल्फर की वैल्यूज़ पुटअप नहीं करेंगे। 32/12 कार्बन हमने कितना निकाला था 750, 8 इंटू हाइड्रोजन 8 इंटू 52, ऑक्सीजन हमारा आया था 121। सब्सटीट्यूटिंग ऑल दिस, सॉल्विंग दिस, वी गेट दी ऑक्सीजन क्वांटिटी दैट इज 2695 ग्राम्स। नेक्स्ट वी कैन कैलकुलेट मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर। फार्मूला हमारे पास है, ये हमारा फार्मूला हो गया नेट ऑक्सीजन इंटू 100/23। नेट ऑक्सीजन अभी आपने कैलकुलेट किया है, सब्सटीट्यूट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 kg ऑफ कार्बन। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रोवाइडेड है, ना तो हाइड्रोजन है, ना तो सल्फर है, ना तो ऑक्सीजन है। तो आप सीधा अपना फॉर्मूला रख सकते हैं। आपका फॉर्मूला कितना रह जाएगा, ये सब चीज़ें हट जाएंगी। तो ओनली दिस मच ऑक्सीजन क्वांटिटी इज इक्वल टू 32/12 कार्बन, दिस इज व्हाट इज लेफ्ट। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं किस तरीके से हमने ये किया था, जो मैंने अभी आपको समझाया भी है। सो 32/12 इंटू 3000 क्यों लिया है हमने, क्योंकि 3 kg को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, 3000, ठीक है। बाकी हमने कुछ भी नहीं लिया, ओनली कार्बन इज कंसिडर्ड, वी गेट नेट ऑक्सीजन दैट इज 8000। वेट ऑफ एयर हम कैसे निकाल सकते हैं, वी गॉट द फॉर्मूला नेट ऑक्सीजन इंटू 100/23। नेट ऑक्सीजन की वैल्यू रखिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट द आंसर, राइट। एक चीज़ अब जो हमें देखनी है वो क्या है, यहाँ पे आपको डेटा केजी में प्रोवाइडेड है, आपको वॉल्यूम भी निकालनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए 1 ग्राम ऑक्सीजन को अगर मैं लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन मल्टीप्लाई द वेट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स बाय 22.4/32, ठीक है। क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। 1 मोल किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास, यानी 32 ग्राम्स विल ऑक्यूपाई 22.4। 1 ग्राम कितने का करेगा, 22.4/32। This is how we get the calculations. 1 gram of oxygen will be 1 into 22.4 liters. लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के। तो ये कन्वर्जन हम कर लेंगे। 8000 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है, 22.4/32 को 8000 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5600 लीटर्स आ गया। और आई कैन कन्वर्ट इट टू मीटर क्यूब दैट इज 5.6 मीटर क्यूब। ऑक्सीजन आपके पास आ गया है मीटर क्यूब में, यानी कि वॉल्यूम्स की टर्म्स में। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर के लिए आपके पास फॉर्मूला है नेट ऑक्सीजन इंटू 100/21। नेट ऑक्सीजन कितना है 5.6, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर दैट इज 26.67 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ गैसियस फ्यूल्स हैविंग दिस कंपोजिशन रिमेनिंग बीइंग CO2। वॉल्यूम की कैलकुलेशंस के लिए आप ध्यान रखिएगा, हम डायरेक्ट कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे। टेबल में हमें क्या करना है, पहला जो कॉलम है उसके कंपोनेंट्स लिखेंगे फ्यूल के, दूसरे में कंपोजिशन लिखेंगे, तीसरे में कंबशन रिएक्शन और लास्ट में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको कंपोनेंट्स दिए हुए हैं वो सब हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये कंपोनेंट्स नाइट्रोजन और CO2 ये नॉन कंबस्टिबल हैं, कंसिडर नहीं करेंगे, कैलकुलेशंस के लिए भी नहीं लेंगे। ये हमने चारों अपने कंपोनेंट्स लिख लिए। कंपोजिशन उसी तरीके से जैसे हमने वेट के लिए किया था। कार्बन मोनोऑक्साइड इज 46% ऑफ
1 मीटर क्यूब, तो 46 बाई 100 इंटू 1 0.46 मीटर क्यूब। CH4 आपको कितना गिवन है, मीथेन इज 10%, 10 अपॉन 100 इंटू 1 0.1। इसी तरीके से आप कन्वर्जन्स कर लेंगे। नेक्स्ट कंबशन रिएक्शंस लिखिए। कंबशन रिएक्शन कैसे लिखते हैं, जो भी कंपोनेंट है उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है, इनवेरिएबली आपके प्रोडक्ट्स जो होंगे वो CO2 और वाटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के लिए आप क्या करेंगे, इसकी जो अमाउंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है 0.46 मीटर क्यूब, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए 0.46 को हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, 0.23 आ गया। CH4 कितना है 0.1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.2 आ गया। इसी तरीके से कैलकुलेशंस कर लेंगे। टोटल जो हमारा ऑक्सीजन होगा इन सब को हम ऐड अप करेंगे। ये हमने ऐड किया है, ये आ गया आपका यहाँ। क्योंकि फ्यूल में आपको ऑक्सीजन गिवन नहीं है तो इसी को हम नेट ऑक्सीजन कंसिडर करेंगे। एंड नेक्स्ट यू हैव द फॉर्मूला, नेट ऑक्सीजन इंटू 100/21, सब्सटीट्यूट कीजिए, द आंसर इज देयर। दिस इज हाउ वी डिड दी कैलकुलेशंस। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, अ गैस वॉज फाउंड टू हैव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम। ये सब आपको गिवन है। इफ 25% एक्सेस एयर इज यूज्ड, कैलकुलेट मिनिमम वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ दिस गैस। वेट पूछा है, वॉल्यूम की टर्म्स में डेटा है। क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम के लिए कैलकुलेशंस करेंगे। टेबल आप लोगों को अभी सिखाई थी बनाने के लिए, आप बना सकते हैं। एलिमेंट्स, कंपोजिशन, कंबस्शन रिएक्शन, वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऑक्सीजन आ गया हमारा। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन फ्यूल में भी है, तो हमें क्या करना है, हम नेट ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए अपनी जो कैलकुलेशंस हमने की थी उसमें से फ्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको माइनस कर लेंगे। यू गेट 300 लीटर्स, ठीक है। यहाँ पे 25% एक्सेस एयर है, उसके लिए क्या करना है, जो भी एक्सेस अमाउंट है उसको आप फॉर्मूले के अंदर 100 में प्लस कर दीजिए। फॉर्मूले के अंदर जो 100 है उसमें आप प्लस कर देंगे। सो कीपिंग दीज वैल्यूज यू गेट द आंसर इन लीटर्स। अब हमें ग्राम्स में आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ग्राम्स में आंसर लेने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका लीटर में आंसर आया है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 28.97 अपॉन 22.4 से। 1 मोल ऑफ एयर 28.97 उसका वेट है, 22.4 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट द आंसर इन ग्राम्स, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. In this lecture we discussed this definition of fuel. We compare the properties of solid, liquid and gaseous fuels, characteristics of good fuels हमने discuss किए क्या होते हैं, and we learned how to calculate the air that is required for combustion by weight as well as by volume. कुछ और questions, कुछ और numericals आप practice कीजिएगा तो you will gain the expertise on these numericals. In upcoming lectures we'll be discussing calorific values, different types of calorific values. Again हम उनको solve करना सीखेंगे numericals को based on calorific values, and types of calorific values हम सीखेंगे. So there is a lot more to cover in this fuels and combustion unit. Till then keep learning, keep studying, stay healthy, stay safe. Thank you so much.